So the reason for studying these truths is to be encouraged and to become more actively involved in the church of God. तो इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि आप लोग इससे कलीसिया की उन्नति हो और आप लोग इसमें प्रोत्साहित होकर कलीसिया की उन्नति का कारण बने. We learned yesterday that church is God's family. हमने कल सीखा कि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है. This morning we talked about it. आज सुबह हमने उसके बारे में सीखा. Therefore we should love one another as members of the same family. और इसीलिए एक परिवार के लोग होने के कारण एक दूसरे से प्रेम करना है. We are brothers and sisters. कलीसिया में भाई और बहन हैं. And we saw that church is like a building. और हमने देखा कि कलीसिया एक बिल्डिंग के समान है, एक इमारत के समान है. We are living stones. हम जीवित पत्थर हैं. And all of us together become part of that building. और हम सब मिलकर उस बिल्डिंग के भाग बन जाते हैं. And the Lord Jesus is building his church. और परमेश्वर अपने कलीसिया को बना रहा है. We are all stones in that building. और हम सब उस बिल्डिंग के, उस घराने के पत्थर हैं. You know, in a building, stones have to stay together, sticking to each other. और आपको मालूम है एक बिल्डिंग जो होता है उसमें पत्थर आपस में जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ चिपका रहना चाहिए. And tonight we are we're going to talk about church as a body. और आज रात को कलीसिया जो शरीर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. We have detailed teaching about that in the New Testament. और पवित्र नए नियम में इसका बहुत ही अच्छे से विवरण दिया गया है. In 1 Corinthians 12 there are many verses that talk about the details of this. पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में इसका बहुत ही अच्छा विवरण दिया गया है. We are one body and we are all members of the same body. हम एक शरीर हैं और हम उस शरीर के अलग अलग अंग हैं. And verse 20 of chapter 12. और उस 12वें अध्याय के 20 आयत में But now are there many members yet but one body. परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है. We are many but we are one body. हम अलग अलग हैं लेकिन हम एक शरीर हैं. Now Apostle Paul goes on to explain that truth. और प्रेरित पौलुस उसका व्याख्या करता है, उसको समझाता है. And this morning I reminded you as to how that body was formed. और आज सुबह मैंने याद दिलाया कि ये शरीर कैसे बना. Look at verse 13 of chapter 12. उस 12वें अध्याय के 13 आयत को जरा देखेंगे. For by one spirit are we all baptized into one body. एक देह होने के लिए, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया. That is the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा है. The Holy Spirit baptized all of us to make us into one body. पवित्र आत्मा ने हम सबको बपतिस्मा दिया कि हम एक शरीर बन जाएं. Who all are involved in that? कौन कौन इसमें सम्मिलित हैं? Jews are there, Gentiles are there. यहूदी है, यूनानी है. Bond are there, free are there. दास है, स्वतंत्र है. All of us. हम सब People from different cultures and backgrounds and situations. अलग अलग संस्कृति के अलग अलग जगह से आए हुए लोग. They were all taken by the Holy Spirit. इन सब को पवित्र आत्मा ने लिया And dipped them, baptized them in the Spirit. और उनको पवित्र आत्मा में डुबोया And made one body. और उनको एक शरीर बनाया. That is called the baptism of the Holy Spirit. और इसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहा जाता And है. the result was a body was formed. और उसका परिणाम ये हुआ कि एक शरीर बन गया. Historically, this took place on the day of Pentecost. और ये इतिहास में पेंतिकुस्त के दिन में हुआ. And we are all part of that body. और हम सब उस शरीर के अंग हैं. Which was formed by the working of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा ये हुआ. So all of us are members of the Lord's body. तो हम सब जो हैं उस एक शरीर के अंग हैं. We are Christ's body. हम यीशु मसीह के शरीर हैं. So church is the body of Christ. कलीसिया यीशु मसीह का देह है. And Christ is the head of that body. और यीशु मसीह उस कलीसिया का सिर है. And we are all members of that body.
और हम सब उस शरीर के अंग हैं। Now, all of us understand this well because we know how a body functions. और ये हम सब के लिए समझना आसान है क्योंकि हमें मालूम है शरीर कैसे काम करता है। Look at chapter 12, verse 12. 12 अध्याय के 12 आयत को देखिए। For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। Verse 14. 14 आयत। For the body is not one member, but many. इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। Then Paul goes on to talk about various members of the body. और उसके बाद पौलुस जो है शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में आगे बोलता है 15 आयत We से। have many organs in our body. हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, They are all important. सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। God has made us in a wonderful way परमेश्वर ने हमें बड़े अद्भुत रीति से बनाया है and put each organ at the right place. और एक एक अंग को सही स्थान में रखा है। And when the members remain at the right place, they all function together well. और जब एक एक अंग अपने सही जगह में रहता है तो अच्छे से काम करता है। And no part of the body has any reason to boast. और शरीर का कोई भी अंग ये अब घमंड नहीं कर सकता। No part can say that I'm better. कोई अंग ये नहीं कह सकता मैं उससे अच्छा हूं। We all need each other. हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। We need the eye, we need the nose, we need the mouth, we need everything. हमें नाक की जरूरत है, हमें आंख की जरूरत है, हमें कान की जरूरत है, हमें सब अंगों की जरूरत है। And in verse 21 we read, और उसके बाद 21 आयत में हम पढ़ते हैं, the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. यहाँ पे 21 आयत में देखिए क्या लिखा है, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। And later Paul says some of the members look less honorable. और 22 में कहता है परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, But all of them are needed. लेकिन वो सब जरूरत है। All the members are needed. सभी अंगों की जरूरत है, आवश्यकता है। That is the truth that is brought out through the example of a body. और ये सच्चाई इस शरीर के उदाहरण के द्वारा हमको दिखाया जाता है। So no organ in the body should say, I am more important. तो शरीर का कोई अंग ये नहीं कहना चाहिए मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। Some of the organs are visible, seen outside, कुछ अंग बाहर दिखते हैं and some are not visible. और कुछ अंग दिखते नहीं हैं। Now the visible ones can think, well, we are important, everybody sees us. तो जो अंग दिखते हैं वो ये सोच सकता है हमको तो सब देखते हैं, We are more important. हम इसलिए बहुत बड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं। And suppose the invisible says, all right, then I am going to stop working. ऐसा जब एक अंग जो दिखता है वो बोलता है, तो जो अंग दिखता नहीं है वो बोलता है ठीक है तुम बड़े हो, मैं काम करना बंद कर देता हूं। So the inside one, heart. सोच के देखिए अगर दिल जो हमारे अंदर है, Okay, you say that the outside one is more important. So I am inside, nobody sees me, so I am going to shut down. तो मान के देखिए कि जो अंग बाहर दिख रहे हैं वो अंग बोलता है मैं बड़ा हूं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये अंदर जो दिल है वो बोलता है ठीक है तुम बड़े हो, मैं काम करना बंद कर देता हूं। Then what happens? क्या होगा दिल काम करना बंद कर दे तो? We die. हम मर जाएंगे। Liver is invisible. कलेजा जो है अदृश्य है। Our kidney is invisible. हमारा गुर्दा किडनी जो है वो अदृश्य है। Have you ever seen your kidney? आपने अपना किडनी देखा है? You have never seen that. आपने अपना किडनी कभी नहीं देखा है। But it's important. लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। So not only the externals are important, the internals are all just as important. तो जो बाहर दिखता है वही नहीं, जो अंदर जो नहीं दिखता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। So the work and ministry of some people in the church are seen by others. तो कलीसिया में कुछ लोगों का काम और सेवकाई बाहर दूसरों को दिखता है। They get all the glory.
और उनको सारी महिमा और आदर मिलती है। They will look at our face and say, "Oh, your face looks beautiful." वो हमारे चेहरे को देखकर बोलेंगे, हो आपका चेहरा कितना सुंदर है, Because face is seen. क्योंकि चेहरा दिखता है। Nobody tells us, "Oh, your heart is beautiful." कोई भी हमसे ये नहीं बोलता, ओ तुम्हारा दिल कितना सुंदर है। No one tells us your liver is beautiful. कोई ये नहीं बोलता, वो तुम्हारा कलेजा कितना सुंदर है। But is there any meaning in that? लेकिन क्या उसका कोई मायने रखता है? Whether externally seen or not seen, चाहे बाहर से दिखे या ना दिखे, all are important. सब बहुत महत्वपूर्ण है। Doesn't matter whether they get glory from others or not. दूसरे उसका प्रशंसा करे या ना करे, Whether they are seen by others or not. चाहे कोई देखे या ना देखे, God has so beautifully arranged the organs in our body in the right places to function for the well-being of the whole body. परमेश्वर ने शरीर के अंगों को इतने सुंदर तरीके से, संगठित तरीके से उसको अपने अपने जगह में रखा है ताकि शरीर अच्छे से काम करे। So Paul explains this in chapter 12. We are not taking time to read all of them. 12वें अध्याय में पौलुस जो है इस बात को अच्छे से समझाता है। And you can read it later. आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। How wonderfully God has made our body. कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया है। Many members, but one body. अलग अलग अंग लेकिन एक शरीर। Each member, some look big, some look small. एक ही शरीर लेकिन उसमें अलग अलग अंग, कुछ बड़े दिखते हैं, कुछ छोटे दिखते Some हैं, are seen, some are not seen. कुछ दिखते हैं, कुछ अदृश्य हैं, But all are important. लेकिन सब महत्वपूर्ण है। That is so with the body of Christ. परमेश्वर के शरीर के, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के साथ भी वैसा ही है। That is so with the church. वैसा ही कलीसिया में भी है। Members of the church are members of the body of Christ. कलीसिया के जो लोग हैं वो कलीसिया के जो अंग हैं वो मसीह के देह के भी अंग हैं। They don't have to try and change their place, change their location or their function. कलीसिया के अंगों को, जो मसीह के देह के अंगों को अपना जगह बदलना नहीं है। Now suppose in your physical body, अगर आपके अपने शारीरिक देह में your nose says, आपका नाक कहता है, I want to sit here on your forehead. मेरे को तुम्हारे माथे में बैठना है। This place is not good. ये जगह अच्छा नहीं है। I will transfer here and come here. मैं उसको स्थानांतरित करूंगा और यहां से यहां पर ऊपर माथे में आ जाऊंगा। Can you imagine such a face? ऐसा चेहरा सोच सकते हैं जिसमें नाक You will यहाँ हो। you will look very strange. आप बड़े अजीब दिखोगे। But God has placed it in the right place. लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने सही जगह में रखा है। So in the body, तो वैसे ही शरीर में all are important. सब महत्वपूर्ण है। You need not shift places. आपको जगह बदलने की जरूरत नहीं है। Did you understand that? समझ में आया आपको? Wherever God has placed you, be there. परमेश्वर ने आपको जहां रखा है वहां रहो। Don't look at other members and feel jealous. दूसरे लोगों को देखकर जलने की जरूरत नहीं है। आपको जलन नहीं होना चाहिए। Don't look down upon other members. दूसरे लोगों को नीचा देखना भी नहीं चाहिए। Don't think that, oh, those members are more important, I am not important. ये भी मत सोचे कि अरे वो लोग बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं। There's no need for all that. ऐसी कोई जरूरत नहीं है। Just as those things are unnecessary in the physical body, those thoughts are unnecessary in the spiritual body. जैसे ही हमारे शारीरिक देह में ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती, वैसे ही परमेश्वर की कलीसिया में भी ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं है। So they don't have to change places. तो आप लोगों को जगह बदलने की जरूरत नहीं अंगों They को, don't have to change their functions. और उनको अपना काम भी बदलने का जरूरत नहीं है। Suppose the nose says, I will take up the responsibility of hearing. अगर नाक बोलेगा अब से मैं सुनने का काम करूंगा, And suppose the nose tries to do that. और आप सोच के देखिए अगर नाक सूंघने के बजाय, सांस लेने के बजाय सुनने का काम करता And है, you say something, और आप कुछ बोलते हैं and the nose will be asking, hey, what did you say? What did you say? और नाक पूछता रहेगा क्या बोला तूने, क्या बोला तूने, What? I did not understand. What was that? और नाक बोलेगा मेरे को सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। Suppose the ear says, I will smell. और कान अगर बोले मैं सूंघूंगा, I'm not going to listen anything now. मैं सुनना नहीं चाहता, मेरे को सूंघना है। I will smell.
मैं सूंघूंगा। Good fish fry smell, but doesn't feel anything. बढ़िया मछली फ्राई हुआ है, लेकिन इसको कोई सुगंध नहीं आ रहा है। There is dirty scent also, but बदबू आ रही है, गंदा बदबू भी आ रहा है, सूंघ everything, सकता है, everything will be confusion. सब गड़बड़ हो जाएगा। This is what is happening in many churches. कई कलीसियाओं में ये हो रहा है। Many ears are saying we will smell, कई कान बोलते हैं हम सूंघेंगे, and many noses are saying we will hear. और कई नाक बोल रहे हैं हम सुनेंगे। There is no need for all that. ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। So what is the best thing to do? तो सबसे अच्छा क्या करना है? Be satisfied with the function and the place that God has given you in the body of Christ. तो परमेश्वर ने जो मसीह के देह में जो जगह और काम दिया है, उसमें आप संतुष्ट रहें। Do that work well. उस काम को अच्छे से करें। One mother elephant is talking to a baby elephant. उस कार्टून में एक हाथी जो है अपने बच्चे से बात करती है, And where they are standing, there is a big tree. और जहां वो खड़े हैं एक बहुत बड़ा पेड़ है, On top of the tree sits an eagle, a bird. और उस पेड़ के ऊपर एक चील है, You बड़ा know- एक पक्षी है। You know, eagle can fly up. आपको मालूम है बाज वो उड़ सकता है। So this mother elephant is looking at that eagle, और ये माँ जो है, हाथी माँ जो है अपने उस पक्षी को देखती है, उस चिड़िया को देखती है, and is telling the baby elephant, बेटा, और वो telling the baby elephant, उस बच्चे से कहती है, see how that eagle is flying. देखो वो चील कैसे उड़ रही है। In spite of my best efforts, I could not fly. वो चील को देखो कितना अच्छा उड़ रही है, मैं बहुत कोशिश की हूं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? Mother elephant. माँ हाथी जो है वो बोल रही है, ओ। बहुत कोशिश की हूं लेकिन मैं नहीं उड़ पाई। All my lifetime, I could not fly. पूरे जिंदगी भर कोशिश की, मैं उड़ नहीं पाई हूं। Baby, at least you must fly. बेबी तू कम से कम उड़ना। And the baby is saying, और बेबी बोलती है, okay, mother, I will try. कोशिश करूंगी मम्मी। Is there any sense in that? इसमें कोई मतलब है? कोई Looking दिमाग- at an eagle that flies, the elephant is jealous. जो चिड़िया उड़ रही है या बाज उड़ रहा है, उसको देखकर माँ को जलन हो रहा है, And she wants a baby to try and fly like the eagle. और वो चाहती है कि उसकी बच्चा जो हाथी है वो उस बाज के समान उड़े। Eagle is made to fly. बाज को परमेश्वर ने बनाया है कि वो उड़े, And elephant is made to walk. और हाथी को बनाया कि वो चले। They should be happy with whatever place God has given them. जो काम दिया गया है, उस काम को जो जगह दिया गया है उसमें संतुष्ट रहना So है। what is the lesson we are trying to learn? तो हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं? In the body of Christ, पर मसीह के देह में just as God has placed organs in the physical body at the right place for the right function, in the spiritual body also, God has placed all of us to do the right thing. जैसे शरीर में अलग अलग अंगों को अलग अलग जगह में अलग अलग काम के लिए रखा है, वैसे ही मसीह की देह जो कलीसिया है उसमें अलग अलग अंगों को अलग अलग जगह और काम के लिए रखा है। We all have to function together. हम सबको एक साथ काम करना है। No need of competition, कोई प्रतियोगिता करने की जरूरत नहीं है, no need of jealousy, जलने की जरूरत नहीं, जलन करने की जरूरत no नहीं need है, of fighting in the church. कलीसिया में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। You do what God has given you to do. आप उस काम को करें जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। The ability God has given you. जो काम करने का जो योग्यता दिया है उसको करें। I will talk about that little later. उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। Before that, let me say another thing. उससे पहले मैं एक और बात बताऊं। Body has to work together.
शरीर मिलकर काम करना जरूरी है, helping each other. एक दूसरे को सहायता मदद करना है। See, if a mosquito comes and sits on this hand अगर सोच के देखिए, अगर एक मच्छर आकर यहाँ पर इस हाथ में बैठता है and biting, और यहाँ बैठकर काट रहा है, what will the other hand do? ये हाथ क्या करेगा? It will come to help. वो आएगा और इसको मदद करेगा। If it is scratching here on this hand will come, if it is itching, this hand will come to scratch. अगर इस हाथ में खुजली हो रहा है, खुजला रहा है, तो ये हाथ आएगा और यहाँ पर क्या करेगा? खुजलाएगा। This hand will never say, okay, you feel bad, you feel like scratch, itching, I'm not going to help you. अगर ये हाथ बोलता है तेरे को खुजला रहा है, नहीं तू खुजला, मैं नहीं खुजला के दूंगा तेरे को, Automatically this will come to help. बिना अपने आप ये हाथ क्या करेगा? अपने आप आकर खुजलाएगा। Suppose an ant is on your forehead अगर एक चींटी आपके माथे में बैठा है and your hand comes to help. आपका हाथ आता है, उसको मदद करता है। See, all the members of the body have to help one another. शरीर के सारे अंगों को एक दूसरे की सहायता करना है। If it doesn't help, और अगर मदद नहीं करेगा, then the body cannot function properly. तो शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। In the body of Christ, मसीह के देह में, in the churches where you are placed, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, sometimes mosquitoes come. कभी-कभी मच्छर आ जाते हैं, You need to help. आपको मदद करना है। Sometimes ants come. कभी चींटियां आ जाती हैं, You need to help. आपको मदद करना है। Don't say, oh, and you bite, let him suffer. आप ये ना सोचे कि ए चींटी तू काट उसको झेलने दे। No, don't say that. कभी ऐसा ना सोचे। You immediately spring into action. आप तुरंत काम में आ जाएं। Do you know why you do that? आपको मालूम है आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसको चींटी काटने दो? All the organs in your body are under the same control. आपको मालूम है क्यों एक शरीर का अंग दूसरे शरीर को मदद करता है? क्योंकि ये सबको कंट्रोल जो है एक जगह से होता है। We all have two hands. हम सबके दो हाथ हैं। Those hands never fight with one another. ये हाथ दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। Does your left hand ever fight with your right hand? आपका ये हाथ इस हाथ से लड़ता है क्या? Does this hand cut this hand? क्या ये हाथ इस हाथ को जबरन काटता है क्या? Anybody there like that? है कोई? If there is anyone, we'll take you to the mental hospital. अगर ऐसा कोई करता है तो आपको पागल खाना लेके If जाएंगे। you are cutting yourself, we will take you to the mental hospital. अगर आप अपने हाथ को स्वयं काट रहे हैं तो आपको पागल खाना लेके So जाएंगे। normal people won't do that. सामान्य लोग वैसा नहीं करेंगे। Okay, why is it that these two hands are good friends? ये कारण क्या है कि ये दोनों हाथ अच्छे मित्र हैं? Is it because they are neighbors? क्या इसलिए क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं? No. Neighbors always fight. नहीं, पड़ोसी लोग तो हमेशा लड़ते हैं। Is it because they always see one another? क्या ये हाथ एक दूसरे को देखते रहते हैं इसलिए No, आपस में मिलकर काम करते people हैं? who see one another every Sunday also fight. जो लोग हर संडे एक दूसरे को देखते हैं वो लोग भी लड़ाई करते हैं। Then why is it that they never fight? तो ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों लड़ते नहीं हैं? There's only one reason. एक ही कारण है, Both hands are under the same head. दोनों हाथ एक ही सिर के अधीन में है। My right hand is under this head. My left hand also is under the same head. मेरा दाहिना हाथ इस सिर के कंट्रोल में है, मेरा बायां हाथ भी इसी सिर के कंट्रोल में है। They receive instruction and control from the same head. दोनों को समझाइश और दोनों को समझ जो है उसी सिर से आता है। If two hands get directions from two different heads, they'll be fighting. अगर दो हाथ को दो अलग अलग सिर से अगर बताया जाएगा क्या करना है तो ये आपस में लड़ेंगे। This is a great truth God teaches us through the body. पर इस शरीर के द्वारा परमेश्वर इस बड़े सच्चाई को हमें सिखाता है। All the organs function together because all the organs take direction from the same head. ये सारे शरीर के सारे अंग अपने काम को सही तरीके से इसलिए करते हैं क्योंकि उनको निर्देश एक ही सिर से आता है। What is the lesson we learn? क्या पाठ सीखा हमने? If all the organs sitting here, यहाँ जितने अंग बैठे हैं, if you are all under the same head, आप लोग सब अगर एक ही सिर के अधीन हैं, who is the head? कौन है सिर? कौन है?
The Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह, He is the head of the church. वो कलीसिया का सिर है। If we all take direction from the same head, और हम सब अगर उसी सिर से अगर निर्देश को लेते हैं, not only that we will not fight, we will always seek to help one another. सिर्फ इतना ही नहीं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम एक दूसरे को मदद करेंगे। That is true about husband and wife also. ये पति पत्नी के विषय में भी ऐसा ही If है। both of them are under the same head, they will not be fighting. अगर दोनों एक ही सिर के अधीन में है तो वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे। So if all the members in the church are under the headship of the Lord Jesus, तो अगर कलीसिया के हर एक अंग प्रभु यीशु मसीह जो सिर है उसके अधीन है, if they all follow the scriptures and directions from the Lord, अगर वो लोग सब बाइबल के अनुसार लिखी बातों के अनुसार चलेंगे, they will only help one another. वो लोग सिर्फ एक दूसरे को मदद करेंगे। What a wonderful lesson the Lord teaches us through this physical body. कितने सुंदर, कितने अद्भुत शिक्षाओं को इस शरीर के द्वारा हमें सिखाता है। So no despising one another, तो एक दूसरे को नीचा नहीं करते, तुच्छ नहीं समझते, no boasting in the body, कोई शरीर में अहंकार नहीं करता, not looking down upon some organ. किसी को नीचा नहीं देखता, All function together under the same head. सब एक साथ काम करते उस एक सिर के अधीन में, All of them help one another, वो सब एक दूसरे का मदद करते हैं and the body grows healthy. और शरीर जो है मजबूत होता जाता है, हष्ट पुष्ट होता है। Apply that to the church. इस काम को आप कलीसिया में लागू करें। In your local church, आपके स्थानीय कलीसिया में all organs of the same body शरीर के अलग अलग अंग help one another. एक दूसरे को मदद करें, Care for one another. एक दूसरे का ख्याल करें, Don't be jealous of one another. चिंता करें, जलन ना करें, Be concerned about one another. एक दूसरे के बारे में चिंता करें। Do all for the benefit of the other. हमेशा सब कुछ दूसरे के फायदे के लिए करें। Then you will have a church that is happy and vibrant and fruitful. तो कलीसिया जो है आनंदमय और जोशीला और काफी फलदायी होगा। Now let me say something about the functioning of the body, how it works. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक शरीर कैसे काम करता है। You know, our body functions, as I said, together helping one another. मैंने बताया कि शरीर जो है मिलकर काम करता है और एक दूसरे को मदद करता है। Each one is given a function. शरीर के एक एक अंग को एक एक काम दिया गया है। In the spiritual body, हमारे आत्मिक शरीर में the Lord has given all of us what we call spiritual gifts. हम सबको प्रभु ने जो कलीसिया में है हमको आत्मिक वरदान दिया है। Look at chapter 12 of 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में वापस आ जाएं। verse 1. पहला आयत, Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. हे भाइयों, पहला आयत, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। I want you to know about spiritual gifts. मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों के बारे में समझो। Verse 4 says, 4 आयत में क्या लिखा है? Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। So there are many spiritual gifts. तो अनेक आत्मिक वरदान हैं। Okay, what is spiritual gift? आत्मिक वरदान क्या है? Spiritual gift is the ability God gives to each person to use for the well-being of the body. आत्मिक वरदान वो विशेष काम है जो परमेश्वर देता है, विशेष योग्यता है जो परमेश्वर देता है जिससे शरीर अच्छे से काम करे या बढ़े। Understand this properly. इसको अच्छे से समझें। Spiritual gifts are special enablements of God. आत्मिक वरदान परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाला एक विशेष सहायता है या विशेष काम है। Special ability God gives. एक विशेष योग्यता है जो परमेश्वर देता है। क्षमता, थैंक यू, विशेष क्षमता है जो परमेश्वर देता है। To whom does he give? किसको देता है? To all members. सभी अंगों को देता है। You know, there are many passages in the New Testament that talk about spiritual gifts.
बाइबल में नए नियम में कई ऐसे जगह है जहां पे आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा है। And in Romans 12, we read the details of this. और रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में उसका विवरण दिया गया है। Starting from verse 4. चौथे आयत से लेकर उसका विवरण दिया है। So you read all those passages that talk about spiritual gifts. और ये सारे भागों को पढ़े जो आत्मिक वरदानों के बारे में बताता है। And there is a particular usage there saying each one. और वहां पर एक खास एक पद प्रयोग किया गया है, हरेक। Gifts are given to each one. हरेक को वरदान दिया जाता है। Did you hear that? क्या आपने सुना? What does the New Testament say? नया नियम क्या कहता है? God has given spiritual gifts to each one. That means to all believers. पवित्र वरदान जो आत्मिक वरदान जो है एक हरेक को दिया गया, मतलब एक एक व्यक्ति को दिया गया, सबको दिया गया। To men and women. पुरुष को और स्त्री को। All believers are endowed with spiritual gifts. हरेक विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया, आत्मिक वरदान दिया गया है। Now what is Vardhan? Don't forget that. वरदान क्या है? Special ability. विशेष, क्या शब्द है यार? क्षमता, विशेष क्षमता। To do something for the well-being of the body. कुछ ऐसा काम करने के लिए जिससे शरीर अच्छे से काम करे। For the building up of the body of Christ. कलीसिया मसीह के देह के बनाए जाने के लिए, Read that या verse. बढ़ने के लिए। Read that verse in verse 11, chapter 12, verse 11. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 11वें आयत को पढ़ेंगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। Dividing to every man severally as he will. जैसे वो चाहता है वो बांट देता है। Same spirit. एक ही आत्मा। So who gives spiritual gifts? तो आत्मिक वरदान कौन देता है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Same spirit gives different gifts to different people. वही आत्मा अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान देता है। As he will. जैसा वो चाहता है। That means according to his plan. उसका मतलब उसके योजना के अनुसार। I did not get the ability to preach because I prayed and asked God to give me the ability to preach. I got that gift because God gave it to me. That's all. मैं जो प्रचार करता हूं, ये प्रचार करने के वरदान को मैंने प्रार्थना करके प्रभु से नहीं मांगा, प्रभु को ये भाया कि वो वरदान मुझे दे कि मैं प्रचार करूं। Some of you don't have that gift. आप में से कुछ लोगों को वो वरदान नहीं है। That is not because you did not pray. वो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने प्रार्थना नहीं किया इसलिए आपको वो वरदान नहीं मिला। The Holy Spirit, did not give it to you according to His plan. That's all. पवित्र आत्मा ने अपने योजना में उस काम को आपको नहीं दिया। Don't think that people who have some, visible gifts are more spiritual. Don't think like that. कभी भी ऐसा ना सोचे जिनको ऐसे वरदान जो बाहर दिखते हैं वो लोग ज्यादा आत्मिक हैं, ऐसा कभी ना सोचें। Preaching is an open gift. ये प्रचार करने का जो वरदान है ये खुला हुआ वरदान Or है। teaching is an open gift. ये शिक्षा देना जो है सबको दिखने वाला वरदान है। All cannot teach. सब लोग नहीं सिखा सकते। All cannot preach. सब लोग प्रचार नहीं कर सकते। Those who don't have that gift, जिनके पास वो वरदान नहीं है, if they get up and start talking, अगर वो खड़े होकर यहाँ से बोलने लगेंगे, they will be saying ba 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 ba. वो लोग बब्बा बोलेंगे। Why? क्यों? They don't have the gift. क्योंकि उनको वरदान नहीं है। Not because they are unspiritual. वो इसलिए नहीं कि वो आत्मिक नहीं है। God has not given that gift to them. उनको परमेश्वर ने वो वरदान नहीं दिया है। So this verse tells us, तो ये वचन हमें बताता it है is the Spirit of God that divides gifts. आत्मा है जो अपने इच्छा के अनुसार वरदान बांटता है। As He will. जैसा वो चाहता है। According to His will. अपने इच्छा के अनुसार वो देता है। Now there is a word marji in Hindi, right? मर्जी, अपनी मर्जी से, है ना? That is how the Holy सुने Spirit. That is how Holy Spirit gives. पवित्र आत्मा वैसा देता है। According to His will, He gives. वो अपनी मर्जी से देता है। So don't worry saying, "Oh, I don't have that gift."
he has that gift, I don't have it. Don't worry about that. तो आप ये चिंता ना करें, अरे मेरे को वो वरदान नहीं है, उसको वो वरदान है, मेरे को वो वरदान नहीं मिला, ऐसा सोचकर चिंता ना करें। But every believer has some gift. लेकिन हर एक विश्वासी को कुछ ना कुछ वरदान मिला है। You know, there are lists of gifts in the New Testament. नए नियम में वरदानों की सूची है। We have no time to go into all that. उन सब में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। You know, in verse 6 we read, 6वें आयत में 6 आयत में देखते हैं, there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। Verse 7 says, 7 में लिखा है, it is given for the profit of all. किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को दिया जाता है। So different people, God has given different gifts. तो अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया गया है। In verses 8 and 9, many gifts are 8, 9, 10, many gifts are listed. 8, 9, 10 में अलग अलग वरदानों को, बहुत सारे वरदानों की सूची दी गई है। Some of those gifts are not there today because that was needed only in the early part of the church. उसमें से कुछ वरदान ऐसे भी हैं जो आज नहीं है, क्योंकि उस समय कलीसिया की शुरुआत में वो वरदानों की आवश्यकता थी। But those gifts, there are gifts that are there today. लेकिन ऐसे वरदान भी हैं जो आज भी हैं। Preaching, teaching and all that, those gifts are there today. प्रचार करना, शिक्षा देना, वो आज भी वो वरदान है। So the Spirit gives it तो आत्मा देता है as He likes it. जैसा वो चाहता है। He gives different gifts to different people. वो अपने मर्जी के अनुसार अलग लोगों को अलग अलग वरदान देता है। But the point is, all have spiritual gifts. लेकिन बात यह है, सबको प्रभु ने आत्मिक वरदान दिया है। Sisters also have spiritual gifts. बहनों, आपको भी प्रभु ने वरदान दिया है। The sphere of exercise may be different. उसको कार्य करने का जो क्षेत्र है वो अलग होगा। Men may be exercising their gifts always publicly. पुरुष लोग अक्सर अपने वरदानों को सबके सामने शायद वो हम देख पाते हैं उनके कामों को। Some of the gifts given to sisters, they may be exercising it among sisters and not before the whole church. और हो सकता है बहनों को जो वरदान मिले हैं वो ऐसे वरदान भी होंगे जो सिर्फ बहनों के बीच में वो इस्तेमाल करते हैं। But all have gifts. लेकिन सबको वरदान मिला है। So you should know what is the gift God has given you. तो आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सा वरदान दिया है। How do you know that? कैसे जानेंगे आप? Number one, पहली बात, should start praying. प्रार्थना शुरू करें। Lord, I want to know what gifts you have given me. हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं तूने मुझे क्या वरदान दिया है। Help me to know that. मेरी सहायता कर कि मैं समझ सकूं। Number two, दूसरी बात, you start exercising those gifts that you think you have. आप उन कार्यों को, उन वरदानों का इस्तेमाल करें या उसको कार्य में लाएं जो आपको लगता है कि प्रभु ने आपको दिया है। You think you have this gift. आपको लगता है कि आपको ये शायद वरदान है। You start using it. उसको काम में लाना शुरू करें। If you have it, अगर आपके पास वो वरदान है, others will be blessed by your exercise. आप उस कार्य को करने के द्वारा दूसरों को आशीष मिलेगी And you yourself will be encouraged. और आपको भी उसका प्रोत्साहन मिलेगा। But if that doesn't happen, और ये अगर नहीं होता है, you yourself understand, I don't have this gift, then don't exercise it. आपको स्वयं समझ में आएगा कि आपको वरदान नहीं है और उस कार्य को ना करें। But if you find blessing in the exercise of it, लेकिन आप उस कार्य को करने के द्वारा आशीष अनुभव करते हैं, to you and to others, अपने आप के लिए और दूसरों के लिए, then God is confirming that you have that gift. तो परमेश्वर इस बात को साबित कर रहा है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि आप में वो वरदान है। Another thing, you try to exercise it more and more if there is God's blessing on that gift. तो अगर वो वरदान में परमेश्वर की आशीष है तो उस वरदान को और भी ज्यादा उसको इस्तेमाल करें। Then you will see God opening more doors for you to exercise it. तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए और भी द्वारों को खोल रहा है ताकि आप उस काम को करें। Let me give you an example. एक उदाहरण मैं दूंगा। So here's a young man. एक जवान के बारे में है। He loves the Lord and lives a godly life. वो प्रभु से प्रेम करता है और एक भक्ति का जीवन जीता है। He doesn't know whether he has the gift of preaching or not.
उसको नहीं मालूम कि प्रचार करने का उसको वरदान है या नहीं, But he is praying, Lord, do you have you given me the gift of preaching? लेकिन वो प्रार्थना करता है, प्रभु तूने क्या मुझे प्रचार का वरदान दिया है? And he feels he should start exercising it. और उसको लगता है कि उसे प्रचार करना चाहिए। Maybe in a small house meeting, he says few words. हो सकता है एक छोटे घर के प्रार्थना में वो थोड़ा सा वचन से बोलता है। Now he may not start with, before an open mic. वो शायद माइक में सामने खड़े होकर शायद प्रचार नहीं करना शुरू करता। May not be in a shibir of 400 people. शायद 400 लोगों के शिविर में वो नहीं कर रहा होगा। Maybe 10 people only in a house and you share some thoughts. तो वो जवान जो है 10 लोग एक घर में है, वहां पे अपने विचार को थोड़ा सा पेश करता है। And then you feel, hey, I am able to do this. और आप उस जवान को आपको लगता है कि अच्छा मैं ये कर पा रहा हूं। Others who hear it, they said, brother, what you shared was very good. और दूसरे जो सुनते वो कहते हैं भाई आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला आप। And then when you get another opportunity, you say that again. और उसके बाद जब एक मौका और मिलता है तब आप फिर से वो काम करते हैं। And you feel more light and more interest in doing it. और उसके बाद आपको वो करने में और रुचि आती है। And more people are saying, very good. और भी ज्यादा लोग कहने लगते हैं अच्छा कर रहे हो। We were blessed by it. आपने जो बोला उससे हमको आशीष मिली। Then God opens more doors for you. और आपके लिए परमेश्वर और भी दरवाजों को खोलता है। Another brother says, दूसरा भाई कहता है next week in our cottage meeting also, can you share some word? एक भाई बोलता है अगले हफ्ते में हमारे घर में भी प्रार्थना है, भाई तू आप आओगे? जवान से बोलता है भाई आप आओगे हमारे घर में भी, आप वचन को सिखाएंगे? And you prayerfully prepare and take it up. और आप प्रार्थना पूर्वक तैयारी करते हैं और वहां पर उस संदेश को लेते हैं। Many people are blessed. कई लोग आशीषित होते हैं। You are encouraged. आप प्रोत्साहित होते हैं Slowly you develop. और धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हैं। So not in one day. एक दिन में नहीं। So when you pray and exercise the gifts you think you have, तो जब आप प्रार्थना करते हैं और उस वरदान को जो आपको लगता है कि आप में है उसको काम में लाते, उसको करने लगते हैं, you will see God's blessing. आप परमेश्वर के आशीष को देखेंगे, Others will be encouraged. दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा And you yourself will be encouraged. और आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। God will open more opportunities for you. परमेश्वर आपके लिए और भी मौकों को देगा। That is just an example. ये सिर्फ एक उदाहरण है। Sisters, your abilities also have to be exercised like that. बहनों आपको भी आपको जो वरदान मिला है उसको इसी प्रकार काम में लाना है। Teaching younger sisters, छोटे बहनों को सिखाना, advising them, उनको जवान बहनों को समझा कर देना, giving them good counsel, उनको अच्छे विचारों को देना, talk to them about things they should be careful as young girls. जवान लड़कियां होने के कारण किन बातों में उनको ध्यान देना चाहिए उनको बताओ। How they should be careful in their dressing. कैसे उनके पहनावे में जो वस्त्र पहनते हैं कैसे सावधान रहना है। How you should be careful in your dealings with people. कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करने में कैसे रहना है। How you should be careful not to fall into the traps of Satan. कैसे शैतान के जाल में नहीं फंसना है। He starts with a little bit of advice. छोटे छोटे बातों को समझाने के द्वारा शुरू करते हैं। Maybe later you get an opportunity to share with the girls from the word of God. और हो सकता है आपको ऐसा मौका मिले जहां पर आप बच्चियों को, जवान बच्चियों को आप वचन से सिखाने लग जाएं। And they are also encouraged. और वो लोग को भी प्रोत्साहन मिलता है। Slowly you develop your ministry. धीरे धीरे आपकी सेवकाई बढ़ती है। So all men and women have spiritual gifts. तो हर एक पुरुष और स्त्री को आत्मिक वरदान दिया गया है। And that should be used for one thing. और उसका काम, उस बात को, उस वरदान को एक काम के लिए लगाना है। Chapter 12 verse 7. उस 12वें अध्याय के 7वीं आयत को ध्यान से देखेंगे। You know, that is for the profit or common good of the church. सबके, कलीसिया में सबके लाभ पहुंचाने के लिए होना चाहिए। For the building up of the body of Christ. मसीह के देह के उन्नति के लिए वो होना चाहिए। That is what you should use it for. आपको अपने वरदान को उसके लिए लाना है, काम में लाना है। Not to bring glory to yourself. आपकी अपनी बड़ाई के लिए नहीं। Not to show that you have that gift. ये दिखाने के लिए नहीं कि आपके पास वो वरदान है। Not to become proud because of that gift. घमंडी या अहंकारी होने के लिए नहीं है कि आप दिखाएं कि आपके पास वो वरदान है। Your intention should be to build up the body of Christ. आपका मकसद सिर्फ यह होना चाहिए
कि परमेश्वर की देह कलीसिया जो मसीह की देह जो कलीसिया है वो बढ़े। In Ephesians 4:12, इफिसियों 4 के 12 में there is a usage, it says, edifying of the body of Christ. वहां पर इस प्रकार का प्रयोग किया गया है, 4 का 12 पढ़ूंगा मैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। उसके आखिरी में लिखा है That is the purpose. मसीह की देह उन्नति पाए, वो उद्देश्य है। Build up the body of Christ. मसीह की देह जो है वो बढ़ना चाहिए। Church should become more spiritual. कलीसिया आपके सेवा से आत्मिक होना चाहिए। They should be encouraged. उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। They should be warned of dangers. उनको खतरों का चेतावनी मिलना चाहिए। So the exercise of gifts only for one thing. तो जो वरदान दिया मिला है उसको काम में लाने का, उसका करने का एक ही उद्देश्य है। What is that? क्या है उद्देश्य? Building up of the body of Christ for the general health of the church of God. मसीह की देह की उन्नति परमेश्वर के कलीसिया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। Now, one more thing is there. एक और बात है, In 1 Peter chapter 4, पहला पतरस 4 अध्याय, Apostle Peter also talks about this. उसमें पतरस भी इस बात को कहता है, You know, you should exercise your spiritual gifts. अपने आत्मिक वरदानों में को काम में लाने के लिए कहा गया है। And why should you do that? और क्यों करना है? In verse 11 it says 11वें आयत में लिखा है, about your speaking. You speak as if you are speaking the oracles of God. यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। And at the end it says that God in all things may be glorified through Christ. तो परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, या जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। Not for your glory, आपकी महिमा के लिए नहीं, not to show that you are a great preacher, ये बताने, ये दिखाने के लिए नहीं कि आप अच्छे प्रचारक हैं, but for God's glory. लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। So two purposes or two aims you should have in the exercise of gifts. तो जब परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों को काम में लाते हैं तो दो उद्देश्य हैं। Building up of the body of Christ. मसीह की देह की उन्नति होना है, बढ़ना है। That means spiritual strengthening of all believers. उसका मतलब कलीसिया के हर विश्वासी जो हैं आत्मिक तौर पे मजबूत हो। And another purpose, दूसरा उद्देश्य God's name may be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Through my preaching and teaching, God's name should be glorified. मेरे सिखाने और प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। So we will conclude here and continue tomorrow. यहाँ पे मैं रोकने जा रहा हूं, कल हम आगे बढ़ेंगे। So what did we learn today? तो आज हमने क्या सीखा? We are a body. हम शरीर हैं, Body of Christ. हम मसीह के देह हैं, We are all members. हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। Members are given certain places and functions. हर एक अंग को उसका स्थान और उसका काम दिया गया Be है। satisfied with your position and function. जो स्थान और काम आपको दिया गया है उसमें संतुष्ट रहो, Use it faithfully. उसको विश्वास योग्यता के साथ काम में लाओ। Discern the abilities God has given you. परमेश्वर ने जो योग्यता आपको दिया है उसको आप समझें And use it for the building up of the church and for God's glory. और उसको ऐसा काम में लाओ जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो और परमेश्वर की महिमा हो। Now, don't take these things just as another message. मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को जो सुने उसको एक और संदेश जैसा मत लें। Think about these things. इन बातों के बारे में सोचें। These are things to be put into practice in your church life. आपके कलीसिया के जीवन में जहां आप रहते हैं, आपकी कलीसिया है, उसमें आपको काम में लाना है। Men have a role, sometimes very public role. पुरुषों के पास ऐसे काम होंगे जो सबको दिखेगा। Sisters have a role, sometimes it's private role. बहनों को काम है, वरदान है जो शायद सबके सामने दिखे नहीं, But all should encourage others, लेकिन सबका एक काम है एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, teach others, दूसरों को सिखाएं, counsel others, दूसरों को समझाएं, advise others, दूसरों को सलाह दें, help others to grow. एक दूसरे को बढ़ने के लिए सहायता करें। In that process, you yourself will grow. और उस कार्य को करते समय आप स्वयं भी बढ़ेंगे। That is how churches should grow और कलीसियाओं को ऐसे बढ़ना चाहिए in spiritual health.
आत्मिक सेहत में। Not enough to sing well and shout hallelujah. सिर्फ गाना अच्छे से गाना और जोर से हल्लेलुया बोलने से नहीं होगा। There's nothing wrong in that. There's all good things. वैसा करने में कोई गलती नहीं है, अच्छी बातें हैं। But you should be spiritually built up आप आत्मिक तौर पे आपको बढ़ना है by the exercise of your gifts God has given you. जिस पर वरदान को परमेश्वर ने दिया है उसको काम में लाने के द्वारा। May God help us to do that. परमेश्वर सहायता करे कि हम इन कार्यों को कर सकें।